Very good morning to you all, guys. Welcome back to my channel. Today we'll discuss about the essay democracy, and it was very difficult. It wasn't available anywhere. So, without wasting any time, let us discuss few points about S. Radhakrishnan. He was the former president of India, and he became the second president also in 1962. And these lines have been taken from the essay from the story Kalanki, or the failure of civilization. This essay was written 50 years ago, and these lines which Radhakrishnan has told us are also applied today in today's world. So, in this essay, he has told about the pros and cons, means the positive as well as the negative point of democracy, and these views are still important today. Democracy is a very big challenge in front of us. So, without wasting any time, let us read this essay. So, what does he say? Democracy is passing through a testing time. As a political arrangement, it is not very popular. It has broken down in Italy and in Spain. Russia and China are not favorably disposed to it. Even in parts of Eastern Europe and South America, where the semblance of popular representative government is kept up, strong misgivings are felt. Lord Bryce expressed doubt about the feasibility of a real democracy, expect small countries like Switzerland and Scandinavia. What does he say? He says democracy testing time से गुजर रहा है. As a political solution, it has not been very popular. In many countries like Italy and Spain, it has been a failure. Even larger countries don't have favorable condition about it. Further, he says, even in parts of Eastern Europe and South America, there are similar to democracy going through doubts and apprehensions. Other democratic governments are also not very successful. Their misgivings stand for doubts. So Lord Bryce was a very famous politician. He said that democracy could never be successful in larger countries. It can only be successful in small countries like Switzerland and Scandinavia. Further, he says, we welcome democracy as a release from autocratic rule, but we are not satisfied with its working today. We are coming to realize the government is a technical art, and only those skilled in it can be rulers. Democracy, in its actual working, really permits a country to be governed by its ablest men. So, what does he says? He says that we welcome democracy, and um, and we get freedom from the dictatorship of England. But today, the method we apply to run our country is not successful. By our experience, we have known that democracy cannot be successful, and every man couldn't perform it, and government can only run through skilled person. It's an art. So further, he says, it is an age of machines in politics too. In the name of democracy, some mysterious causes in the background rule in the state. The elected representative have not any independence of initiative, since they are helpless tools of vast machine. Here he uses the simile. The votes of the members are not influenced by the convictions or the arguments in the assembly, or even the views of the constituencies. The discussion is unreal, the debate is unnecessary, and the democracy is only a name. So what does he say is that in democratic country, in reality, what happens is government actually does not run by the elected representative or by the person who holds a post, but it is run by uh, undefined people who run government from back. Here initiative means energy, and he just simply want to say that government is just a puppet in the hands of mysterious people who run government from back. And unreal means artificial.
So he says that discussion is unreal. The discussion which are being taken in parliaments, and the debates which the debate which we do, and democracy is just a name. It's only a name. Democracy, it's only a name. जो भी गवर्नमेंट है, जो राधा कृष्णन क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट एक सिर्फ पपेट बन गया है लोगों के हाथ में, और डेमोक्रेसी कोई और चला रहा है। मतलब गवर्नमेंट कोई और चला रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट एक पपेट है और डेमोक्रेसी सिर्फ एक नेम बन चुका है। फर्दर आगे हम पढ़ते हैं, व्हाट डज ही सेज, द जनरल इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी have not been favorable to the freedom of the individual in Europe and America, which are said to be the most democratic. गाइस मैं इसको पढ़ूंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं आपको एक एक लाइन समझा देती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दैट डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन गुड टू द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी एक इंडिविजुअल का फ्रीडम छीनती है। इंडिविजुअलिस्टिक हेयर मीन्स इंडिविजुअल गिवन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस। तो वो क्या बोलते हैं कि यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए जानी जाती है, आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बट स्टिल देयर आर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल हैव बीन रिगार्डेड लीस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ उनका फ्रीडम, जो उनका इंडिविजुअल का फ्रीडम है, वो भी बहुत ही कम, लीस्ट इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग। अब यहाँ फंडामेंटलिज्म क्या कहते हैं, उसका फंडामेंटलिज्म है कट्टरवाद। तो क्या बोलते हैं वो, ही प्रेजेंट बिफोर अस द एग्जाम्पल दैट हाउ इज हाईली डेमोक्रेटिक कंट्री हैव बीन फेल्ड। के ये जो नाम लिखा है क्यूकल रेक्स, ये के नाम से जाना जाता है, और कहाँ पर, अमेरिका में। और क्या बोलते हैं वो कि ये एक कम्युनिटी है के जो कि मतलब ये एक कम्युनिटी है जो कि गोरे लोगों के लिए तो ये सपोर्ट प्रोटेक्शन में रहती है, और काले लोगों के लिए ये उसके अगेंस्ट रहती है। तो ये क्या बता रहे हैं कि ऐसे ही नॉर्डिक ये कंट्रीज़ में ऐसे ही होता है। तो ये कंट्रीज़ का तब ये हाल है जब वो डेमोक्रेसी के लिए जानी जाती है। तो कि फिर वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे आएगी एक लाइन, डिसेंटिंग मतलब है डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, कंट्रीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज। आगे हम पढ़ते हैं, इन सोवियत रशिया नो मैन इज अलाउड टू चूज। अब यहाँ से यहाँ तक इसका क्या मतलब है, जो सोवियत रशिया है, अब वो जो रशिया के नाम से जाना जाता है, वेयर कम्युनिटीज गवर्नमेंट गवर्न, यहाँ पे कम्युनिटीज गवर्नमेंट गवर्न करती है, बट नो मैन इज अलाउड टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स। यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट उनको अपने हिसाब से ट्रेन करती है, मेंस को अपने हिसाब से उनको जॉब देती है, दे आर फोर्स टू डू द जॉब। तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, फोर्स करती है लोग, और ये तब जब वो डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी हैज़ बीन कंफ्यूज विद इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे इग्नोरेंस का क्या मतलब है गाइस, यहाँ पे इग्नोरेंस का मतलब है हमें आधी अधूरी नॉलेज होना। तो क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैज बिकम कंफ्यूज विद इग्नोरेंस। इन न्यूज़पेपर पीपल आर जस्ट डिलाइटेड टू रीड स्टोरीज ऑफ फेमस डाइवर्ट। अब यहाँ डाइवर्टीज किसके लिए बोल रही हूँ मैं, डाइवर्टीज यहाँ इसमें बोल रही हूँ, जैसे डांस हॉल, पीपल क्या होते हैं, खुश होते हैं ये स्टोरीज पढ़ने के, जिसमें डाइवोर्स होता है, मर्डर्स होता है, डांस हॉल होते हैं। ऐसी कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं अपना राज चला सकते, डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। देयर इज नो डाउट दैट in democratic country education facilities are increasing and in a large number of people are being educated, but people are being लेवल ऑफ कल्चर इज़ नो लॉन्गर हाई इन सच कंट्री। क्या होता है, लेवल ऑफ कल्चर ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर डेमोक्रेसी पार्ट लेती है वहाँ पर बहुत हाई होता है, और हम क्या होता है, हम अपनी क्रिएटिविटी को कम कर देते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी को भूल रहे हैं। अब फिर वो क्या बोलते हैं आगे, यहाँ पे पॉपुलर, गाइस आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे है पॉपुलर एजुकेशन। तो पॉपुलर एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, कॉमन एजुकेशन। ही सेज दैट कॉमन एजुकेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ प्रेसेस फिल्म्स, यहाँ पे प्रेसेस फिल्म्स वायरलेस हैज़ बीन सक्सीड इन फर्निशिंग द एवरेज ऑफ द माइंड। क्या बोल रहे हैं ये कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन को हमें फ्रीडम मिली है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हो गया व्यवहारवाद। एजुकेशन टू सम एक्सटेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इंडिया, हालांकि एजुकेशन के लिए एक्सटेंड है इंडिया में, सक्सेसफुल हुई है, डेट इज नॉट। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है
एज द मास इज द मोर सिग्निफिकेंट, क्या, हाँ, दोज हु बेटर आर अफेड टू स्पीक। यहाँ से देखिए क्या बोल रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमें क्या बताया है कि जो जो मैन, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सभी के सभी गधे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, नहीं, ऐसा है जो कि रियल कैंडिडेट, जो कि सच में डिजर्व करते हैं, पर वो क्या है, दे आर अफ्रेड टू स्पीक आउट, वो डरते हैं बोलने से, अपनी बात रखने से। अब क्या है कि आजकल डेमोक्रेसी में से रियल कैंडिडेट्स की कोई जगह नहीं है, और रियल कैंडिडेट को कोई पूछता भी नहीं है। दे आर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रन द गवर्नमेंट इन टूडेज डेमोक्रेसी। बहुमत इज इम्पॉर्टेंट, मास यहाँ पे लिखा है ना, मास, तो इन टूडेज डेमोक्रेसी मास इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एंड इंटेलेक्चुअल आरंट गिवन मच इंपॉर्टेंस। फिर यहाँ पे बात आती है ग्रेशियम्स लॉ की। क्या बोल रहा है वो, सॉर्ट ऑफ ग्रेशियम्स लॉ ऑफ मेंटल करेंसी बाय विच गुड वेल, क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि ग्रेशियम्स लॉ जो है, ग्रेशियम लॉ ने हमें क्या बताया था, हमें ये बताया था कि जो बैड करेंसी होती है वो गुड करेंसी के बाहर कर देती है। जो पुरानी मनी, जो बैड मनी होती है, वो गुड मनी को लोग संभाल के रखते हैं, नई मनी को लोग संभाल के रखते हैं, लेकिन जो बैड मनी होती है उनको लोग सर्कुलेशन में चलाते हैं। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है। फिर आगे बोलते हैं देयर इज अ टेंडेंसी इन ऑल द डेमोक्रेसी टू स्टैंडर्डाइज थॉट्स एंड बिलीव आर माइंड वर्क। अब क्या बोलते हैं कि लोग अपने हमारे थॉट्स ऑफ बिलीव तो पीछे हो जाते हैं, लेकिन अपने थॉट्स, लोगों की थॉट्स ऑफ बिलीव हम बिलीव करने लगते हैं। वो क्या कहते हैं, इट इज़ डन बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट दे ट्राई टू स्टैंडर्डाइज आर थॉट्स एंड बिलीव, एंड पीपल of democracy start thinking about their thoughts and belief, and they accept them according to these beliefs that we propose by political parties. But this mechanization of much is not good, because to stop क्या होता है कि ये जो मेकनाइजेशन है वो हमारी लेवल ऑफ थिंकिंग को कम कर देता है, ठीक है। आप यहाँ से पैराडॉक्सिकली का मतलब क्या है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग। क्या होता है, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग कम हो जाती है। आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको हिंदी में बता रही हूँ कि हिस्ट्री हमारा एविडेंस, हिस्ट्री हैज़ बीन द एविडेंस दैट हाईलाइटेड द क्रिएशन इज हार्ड रिफ्लेक्शन, बट दीज थिंग्स आर नॉट गिवन इन डेमोक्रेसी। न्यू क्रिएशन आर ऑलवेज डन बाय द पर्सन हु थिंक डीपली और सोलिडेटरी, हु हैव, गाइज मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है, हु हैव इनसाइड वर्किंग, बट दीज थिंग विल नॉट बी फाउंड इन। क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आदमी जिसके जो न्यू क्रिएशन के आइडियाज़ और थॉट्स लाता है, वो आदमी होता है मेडिटेशन वाला, वो होता है डीप थिंकिंग वाला, वो सॉलिटरी रहता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, डेमोक्रेसी इज इन एक्चुअल वर्किंग इज एन एंटी। क्या होता है कि उन्होंने बोला है कि डेमोक्रेसी जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक है, रियल सेंस में, असलियत में, ठीक है। और जिस इंसान के अंदर डेमोक्रेसी होगी उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंडिविजुअल के लिए। अब जो इलिज़बेथ है, इलिज़बेथ ने क्या बोला है हमें, इलिज़बेथ हैज़, अब यहाँ पे इलिज़बेथ आर डेमोक्रेटिक एंड दैट वी फॉर्म। इलिज़बेथ ने क्या बोला है कि पहले इंसान खुद को रखेगा, वन ओन सेल्फ इज़ द ओनली थिंग विच मैटर्स, बट इन रियल individual is not given opportunity, individual has not given the importance. There can be no progress if our thinking is same। यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे, there can be no progress if the thought, अगर हम सब सेम ही लाइन में सोचेंगे, अगर हम सब सेम तरह से सोचेंगे, तो there cannot be any progress। फिर in last two paragraph, in the rest part he says that some people are raising their voices against the democracies and presenting, यहाँ पे some people किन की बात कर रही हूँ मैं, जैसे लेबर हो गया, सोशलिस्टिक हो गए। जब डेमोक्रेसी हमारे तरह से, जैसे हमने सोचा था वैसे काम नहीं किया, तब अब ये लोग इसके खिलाफ वॉइस उठा रहे हैं, अब ये लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं और अपने अपने सोल्यूशन, एंड दे आर प्रेजेंटिंग देयर सोल्यूशन। बिफोर गेटिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी वी शुड हैव पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी से पहले हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। और फिर बताया गया है, इट इज़ सेड बाय बोल्शेविक, इन्होंने क्या कहा है, दैट हमें ये समझना चाहिए दैट आवर कंट्री इज़ आर क्लास, दैट माई कंट्री इज़ माई क्लास अंटिल देयर क्लास। अब क्या बोलता है कि जब तक क्लास का एंटागनिस्ट यहाँ से चला नहीं जाता, अंटिल द क्लास एंटागनिस्ट इज रिमूव्ड, टिल देन देयर कैन नॉट बी
ट्रू डेमोक्रेसी, तब तक यहाँ पर कोई ट्रू डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर लास्ट में ये क्या बोलते हैं, द पॉलिटिकल लाइफ of a community depends upon on the number of the independent minds and will which compose it. The play, thought and action is essential for the health of community. This cannot be in the present agreement. We must be strive for some way of conducting human affairs than lottery of a ballot box. अब ये क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि ये हमें डिपेंड करता है दैट हाउ मच स्पेस वी गिव टू आवर पीपल। हम कितने इंडिपेंडेंस माइंड्स हैं वो उस पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल लिबर्टी हैज़ बीन टेकन अवे, जो कि इंडिविजुअल लिबर्टी है वो छीन चुकी है और हमें कोई अदर ऑप्शन ढूंढना चाहिए, अदर ऑप्शन देखना चाहिए। यहाँ पे लॉटरी ऑफ बैलेट बॉक्स डेमोक्रेसी के लिए बोला गया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल डेमोक्रेसी तब तक अपनी पहचान नहीं बनाएगी जब तक क्लास डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होगा। किसी भी देश के लोगों को राजनीतिक जीवन जीने के लिए उस देश के इंडिपेंडेंट माइंड पर निर्भर करता है कि कितना इंडिपेंडेंट माइंड्स, हम कितनी अपने लोगों को स्वतंत्र फ्रीडम दे रहे हैं। अब इस ऐसे का क्या थीम है, पहले तो ये ऐसे 50 साल पहले लिखा गया था जो कि तब अप्लाई हुआ था, लेकिन कुछ बातें आज भी ऐसी हैं जो आज भी अप्लाई होती हैं। अब इसमें इसका थीम क्या हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, कॉलोनियल पीरियड को आया बैड गवर्नमेंट का, और डिफेक्ट्स ऑफ द डेमोक्रेसी बताया उन्होंने कि हमारी डेमोक्रेसी में क्या डिफेक्ट्स हैं। थैंक यू।